Good afternoon everyone who are watching this video on regular basis. So in this class we are doing the topic Hess law of constant heat summation. This is under thermochemistry. So the definition of this topic is the total amount of heat evolved or absorbed in a reaction is the same whether the reaction take place in a single step or in a number of steps. It means कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है चाहे वो एक स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾहे वो रिएक्शन एक तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਚਾहे वो ਇਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਚਾहे वो ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ. And the another definition is total amount of heat change in a reaction depends only upon the enthalpy of reactants and enthalpy of product irrespective of the path by which change has taken place. It means jada heat change hai as we studied already कि generally heat change ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ at constant pressure ਤੇ means QP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ. So QP ਕੀ ਹੁੰਦਾ enthalpy change. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ enthalpy change ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ nature of enthalpy of reactants and products irrespective of the path. As we already studied that heat content enthalpy is a state function, so delta H during a reaction depends only upon the nature of initial reactants and the final products. It means अगर कोई reaction हो रही है A plus B and products की ने C plus D. सो जी इंथैल्पी है वो डिपेंड करूगी कि रिएक्शन दे विच इनिशियल रिएक्टेंट्स किहड़े ने ते फाइनल प्रोडक्ट्स की ने वो कदे भी पाथ जिहदे थ्रू जिहड़ा ये रिएक्शन हो रही है या प्रोसैस हो रहा है उस ते डिपेंड नहीं करूगी. सो इसी नूं उन्होंने एक्सप्लेन किया होया एक बहुत वधिया एग्जांपल के थ्रू जिद्दां मैं नीचे लिखा होया. सो जो कार्बन की बर्निंग हुंदी है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ते उत्थे की प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये जी रिएक्शन है ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन. इस रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है -393.5 किलोजूल पर मोल. सो ये सपोज कर लो रिएक्शन हैगी फर्स्ट. ये जी रिएक्शन ने यही रिएक्शन है या तो एक स्टैप है तुम इनिशियल रिएक्टेंट की है कार्बन फाइनल की बनया कार्बन डाइऑक्साइड ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਕਾਰਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮੋਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਲੈਸ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ. ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਟੂ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਇਵੋਲਵ ਦੇਖਣੀ ਆ ਇਨ ਬੋਥ दी स्टेप्स तो कितनी आऊगी इन्होंने दोनों का सम करके देखो. सपोज कर लो H1 होगी ये H2 है तो जो आप इन्हों का सम करांगे कितना होगा -393.5 किलोजूल पर मोल विच इज इक्वल टू डेल्टा H. सो इसका मतलब की है अगर अपनी फर्स्ट रिएक्शन हो रही है जिहदे डेल्टा H की वैल्यू हैगी -393.5. सिमिलरली अगर यही रिएक्शन एक तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टैप्स दे विच आउणगियां तो जो आप डेल्टा H1 ते डेल्टा H2 दोनों का सम करांगे तो हमेशा किहदे इक्वल होगी अगर वो रिएक्शन एक स्टैप दे विच हो रही है. सो यही इहनूं जिहड़ा प्रूव किया होया हैस लॉ में. ठीक है इसका मतलब की है जी कि टोटल जी हीट है वो सेम रहूगी चाहे अपनी रिएक्शन सिंगल स्टैप दे विच होवे चाहे अपनी रिएक्शन मोर दैन वन स्टैप होवे. नेक्स्ट हैगा प्रूफ ऑफ दिस हैस लॉ. सो जिहड़ा हैस लॉ है इहदा प्रूफ देखो प्रूफ है अगर अजे इहदा The proof of Hess law is in accordance with the law of conservation of energy. ठीक है. For example, अगर initial state A है, final state B है, तो अगर यही जड़ा हैगी आ रिएक्शन होवे A तो B है ना अगर ये सिंगल स्टेप दे विच होवे तो इस केस दे विच तुसी कंसीडर कर लो any general reaction A तो D. इत्थे D लिख लो जी. Consider any general reaction A to D. Suppose heat evolved in this process is
कैपिटल Q. Suppose heat evolved is equal to Q जूल. मीनस ए पाथ के थ्रू अगर रिएक्शन हो रही है तो हीट जी इवॉल्व होगी वो की होगी कैपिटल U. उस तो बाद है अगर यही जी अपनी रिएक्शन है ए तो लैके डी तक होवे थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्स. मीनस पहला ए तो बी तक जावे, फिर बी तो सी तक जावे एंड फाइनली कितने जावे डी तक जावे. इट मीन्स की है now again suppose the same reaction occurs in 3 steps. steps केड़े होंगे A तो B, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप की होगा B तो C, थर्ड स्टेप की होगा C तो D. suppose the heat evolved in this path is Q1 and Q2 and Q3 and the total amount of heat evolved is Q dash. Q1, Q2, Q3 एंड इन्हों का जो सम करांगे तो हीट अगर है इन्हों का सम करने तो बाद वो की करूगी Q dash. सो ये हैगा रजे पाथ फर्स्ट, ये हैगा पाथ सेकंड. सो अकॉर्डिंग टू Hess लॉ की होना चाहिए? टेल मी. According to Hess law, heat evolved is the same whether reaction occur in a single step or in a multi-step. So according to Hess law, Q will be equal to Q dash. But if we assume that either Q is less than Q dash or Q is greater than Q dash, then what happens? If we are assuming this case, then इहदा मतलब की है अगर Q dash की वैल्यू Q तो ज़्यादा हैगी आ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੋਂ D ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ D ਤੋਂ ਵਾਪਸ A ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪਾਥ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਥ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ मीनस अगर आप एक स्टेट तो चले आ दूसरी स्टेट ते गए आ फिर अगर प्रोसैस नूं आपां रिवर्स कर दिए तो वापस किहड़ी पोजीशन ते आ जाऊगा वो इनिशियल पोजीशन ते आ जाऊगा. सो इट मीन्स की होगा रजे अगर ये वाला केस होगा इट मीन्स दैट इन अ साइक्लिक प्रोसेस की होगा इफ वी कन्वर्ट A टू D बाय पाथ सेकंड. अगर आप पाथ सेकंड के थ्रू पहला जा रहे हैं तो उस बाद अगर आप रिवर्स आ रहे हैं फिर आप पाथ फर्स्ट के थ्रू आवांगे तो यदा मतलब की है आप आ पाथ के थ्रू गए ठीक है जी इत्थे हीट यूज हो रही है Q डैश फिर आप वापस पाथ फर्स्ट के थ्रू आए उत्थे हीट यूज हो रही है Q हुण इत्थे Q डैश की है ग्रेटर है Q इहदा मतलब ओवरऑल की होगा रजे Q डैश माइनस Q अमाउंट ऑफ एनर्जी must be generated. This is very important that you have to understand. Why it is so? Because आप assume कर लिया कि Q dash दी वैल्यू की है ज़्यादा. It means अगर इत्थे इन्नी अपनी जड़ी हीट है वो उन्हें absorb कर ली Q dash हीट की कर ली absorb कर ली फिर जो आप वापस रिवर्स आवांगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Q की कर दूगा वो इवॉल्व कर दूगा ठीक है. ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ 5 एनर्जी 5 kg पर जूल ਜਿਹੜੀ पर मोल आप absorb कीती है तो 3 आप वापस इवॉल्व करती तो ओवरऑल कुछ तो एनर्जी बचूगी ना. सो दिस अमाउंट और दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी जनरेटेड बट दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हाँ जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कित्थे पढ़िया सी we study about the law of conservation of energy which is the first law of thermodynamics. सो रजे अगर यही वाली चीज हैगी आ कि अपने को कुछ एनर्जी जी जनरेट हो जूगी बट ये वाली चीज की आ दिस इज टोटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इस करके जड़ा है Q ते Q डैश दी वैल्यू हमेशा की होगी इक्वल होगी. इहदा मतलब इत्थों अपना जड़ा हैस लॉ ओ की हो गया वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट हैगा जी एप्लीकेशंस ऑफ Hess law of constant heat summation. So in the applications ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਹੈਗੀ ਆ calculation of enthalpy of formation. enthalpy of formation ਦੀ definition ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ.
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾय ਅਪਲਾਈਂਗ ਦੀ ਹੈਸ ਲॉ। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। इत्थे कुछ डाटा दिता होया जी। सो फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है कार्बन ते ऑक्सीजन दी, जिहड़ी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, ਉਹਦੇ करस्पॉन्डिंग जिहड़ा एंथैल्पी है ਉਹਦੀ वैल्यू दिती हुई है। सेकेंड रिएक्शन दिती हुई है हाइड्रोजन दी की हुई है ऑक्सीजन दे नाल रिएक्शन ते फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ਇਹਦੇ करस्पॉन्डिंग डेल्टा H ਦੀ वैल्यू भी की है गिवन है। थर्ड रिएक्शन दिती हुई है मीथेन गैस दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ऑक्सीजन ਦੀ एडिशन ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, ਉਹਦੇ करस्पॉन्डिंग डेल्टा H ਦੀ वैल्यू है -890.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है जी। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ कैलकुलेट दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन दे बनन दे लई कितनी जिहड़ी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है ਉਹਦੀ वैल्यू पूछी है ते गिवन हैगी है ये सारा डाटा मीनस 3 रिएक्शंस दित्तियां ने, ਉਹਦੇ करस्पॉन्डिंग डेल्टा H ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज दित्तियां ने। नो पहले तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो लिखो। रिक्वायर्ड रिएक्शन की है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन कितों बनूगी कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स मीथेन। ਇਹਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾय ਅਪਲਾਈਂਗ ਦੀ ਹੈਸ ਲॉ। ਫॉर एग्जांपल suppose it is equation first, it is equation second, I already supposed, and suppose it is equation third। now ਕੀ ਕਰੋ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ multiply equation second with 2 and adding equation second to equation first and then subtract equation third from sum of both these equations। सो ये मैं क्यों किया हुण तुसीं ध्यान नाल देखो जी। आपां नूं की रिक्वायर्ड है, तां कार्बन चाहिए, एक की चाहिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अपन ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब कार्बन वाली रिएक्शन पिक कर लो, फर्स्ट रिएक्शन ले ली ਆਪਾਂ। ठीक है, उस ਤੋਂ सेकंड रिएक्शन भी ले ली, बट ਇੱਥੇ 2 मोल्स ने हाइड्रोजन ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1 मोल, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ सेकंड इक्वेशन ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ठीक है, ਹੁਣ सेकंड इक्वेशन ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ सेकंड इक्वेशन ਦਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਥਰਡ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कार्बन प्लस ऑक्सीजन। पहला मेरे जो तीनों रिएक्शन के लैफ्ट हैंड साइड लिखूंगी। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਮੋਲਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ प्लस 2 ਨੂੰ ਹਾਫ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ मतलब ਕੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਚ ਗਈ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਤਾ थर्ड रिएक्शन एंड राइट हैंड साइड पे की होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है जी। सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड माइनस कार्बन डाइऑक्साइड कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर माइनस 2 मोल्स ऑफ वाटर ये भी की हो जाएंगे अपने कैंसल आउट हो जाएंगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों प्लस प्लस मतलब 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ਇੱਥੇ माइनस ਦੀਆਂ 2 ऑक्सीजन है ये भी की हो जाएंगे कैंसल आउट। सो ओवरऑल अपने को की बन गया कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन माइनस मीथेन, अगली साइड की है 0। ਇਹਦਾ मतलब की है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ प्लस सेकंड रिएक्शन दा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, इट मींस डेल्टा H1 प्लस 2 into डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ माइनस 393.7 प्लस की अपने को 2 into माइनस 285.8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ
ए वाला ये ऑलरेडी अगे की लग्या होया माइनस। सो जी माइनस का जिहड़ा साइन है तुसीं बहुत ध्यान दे नाल जिहड़ा वो चूज करना। सो फाइनली सॉल्व करन तो बाद जिहड़ा आंसर आऊगा वो आऊगा 74.9 किलोजूल पर मोल। So this is how we calculate the numericals in which there is asked from you to calculate the enthalpy of formation. And the next application of Hess law is the same है जो ਆਪਾਂ इस example ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। enthalpy of formation calculate similarly ਤੁਸੀਂ calculate ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ enthalpy of allotropic transformation है ना। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਤੋਂ डायमंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੀਨਸ ਕਾਰਬਨ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੂਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ डायमंड की जो इतने की होगी कंबशन इतने भी कार्बन डाइऑक्साइड बनूगी। सो जी ये कोरस्पोंडिंग डेल्टा H1 है, ये कोरस्पोंडिंग डेल्टा H2 है। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकंड तो आप की कर देंगे इक्वेशन सेकंड नु सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट तो। कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन माइनस कार्बन इन डायमंड फॉर्म माइनस ऑक्सीजन एंड राइट हैंड साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड माइनस। तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या होगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 का जिन्ना भी आंसर होगा वो जो अपना की है रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो इदा जे न्यूमेरिकल्स ने हैस लॉ दे नू अप्लाई करके मीन जिन्नियां भी एप्लीकेशंस ने रहे उन्होंने विच तुसी अप्लाई करना हैगा फॉर्मूला हैस लॉ वाला। Next is also important calculations of enthalpy of hydration। हाइड्रेशन वाली इंथैल्पी वो होंदी है जो किसी भी कंपाउंड दे नाल वाटर मॉलिक्यूल लगदे आ तां जदों कंपाउंड हाइड्रेटेड कंपाउंड बन जांदा तां उत्थे जिन्नी एनर्जी रिलीज होंदी है उहनूं कहंदे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो इहदे लई जिहड़ा क्वेश्चन हैगा वो हैगा रजे कैलकुलेट दी इंथैल्पी ऑफ सपोज कर लो मैं ऐदा फॉर्म्स लिख रही हूं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आप लेना कॉपर सल्फेट हैविंग 5 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हुन ए वाला क्वेश्चन है जिहड़ा पूछया है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। गिवन की है गिवन दैट एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इन्हां दे दो इक्वेशन दी जिहड़ियां वैल्यूज ने वो गिवन दित्तियां होईयां ने। ठीक है, हुण सॉल्व करदे हैं आपां। सो पहला तां जिहड़ियां गिवन ने वो दो इक्वेशन लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन की आ अगर कॉपर सल्फेट इत्थे ध्यान नाल देखो सॉलिड फॉर्म है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਆਪਾਂ एक्वियस ਦਾ मतलब वाटर ऐड करते हैं तो कॉपर सल्फेट एक्वियस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -66.5 ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ। नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ रिएक्शन है वो कॉपर सल्फेट है 5 मोल्स ऑफ वाटर है बट वो सॉलिड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ध्यान देना जी ਇਹ सॉलिड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ एक्वियस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ वाटर ऐड ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ कॉपर सल्फेट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ एक्वियस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। सो ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 11.7। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ कॉपर सल्फेट सॉलिड ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 मोल्स ऑफ वाटर लिक्विड ਦੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ कॉपर सल्फेट हैविंग 5 मोल्स ऑफ वाटर सॉलिड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डेल्टा H है ਉਹ ਕੀ ਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है जी, सो जी फर्स्ट एंड सेकंड जी इक्वेशन है वो गिवन है
एंड जी आ वाली इक्वेशन है रिक्वायर्ड है। सो जी हम फर्स्ट इक्वेशन है उन्होंने आप दो स्टैप्स के लिख सकते हैं है ना, फिर ही आप हेस लॉ अप्लाई करेंगे। सो जी फर्स्ट इक्वेशन है राइट दिस इक्वेशन इन अ टू स्टैप। कॉपर सल्फेट सॉलिड है ਉਹਦੇ अगर आप वाटर ऐड करते हैं लिक्विड वाला तो किस कन्वर्ट हो रहा कॉपर सल्फेट 5 मोल्स ऑफ वाटर, पहला वो सॉलिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, फिर ਜਿਹੜਾ कॉपर सल्फेट 5 मोल्स है वाटर सॉलिड वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर जो ਆਪਾਂ एक्वियस ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ कॉपर सल्फेट किस कन्वर्ट हो जाऊगा एक्वियस मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ। सपोज रजे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ डेल्टा H है ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ Q1, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ डेल्टा H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ Q2। ठीक है, समझ गए ना। आपा की कीता आई नो इट इज समवट कंपलैक्स टू अंडरस्टैंड बट सिंपल हैगा, क्वेश्चन दे विच सब दिख रहा है ना। आ वाली इक्वेशन दा मैंने डेल्टा H पूछा होया, आ दो इक्वेशन जेड़ा डाटा हैगा डेल्टा H दा वो की हैगा गिवन है, ये हैगा जी 11.7। हुण जिहड़ी फर्स्ट इक्वेशन है इनू आपां फर्दर टू इक्वेशन दे विच लिख लैने आ, दो स्टैप्स दे विच लिख लिया। हुण तुसीं हेस लॉ अप्लाई करो, यही इक्वेशन है जिहड़ी सिंगल स्टैप दे विच हो रही है। देखो कि कॉपर सल्फेट सॉलिड, इत्थे की है कॉपर सल्फेट सॉलिड, की बन रहा कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस। सो इसका मतलब किया -66.5 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, हुण जिहड़ी डेल्टा H2 वाली है ये देखो कि कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस एक्वस की बन रहा कला कॉपर सल्फेट, यही वाली इक्वेशन आ रही है, ये कोरस्पोंडिंग 11.7 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू की 11.7 Q1 प्लस 11.7। सो इथों Q1 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 78.2 किलोजूल पर मोल आ गई। सो ये Q1 केड़ी रिएक्शन है जी, आ वाली रिएक्शन है कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस 5 मोल्स ऑफ वाटर, ये की बना रहा कॉपर सल्फेट सॉलिड हैविंग हाइड्रेटेड फॉर्म। सो यही रिक्वायर्ड रिएक्शन सी, इसका मतलब जो आंसर है वो की होगा, आंसर इज इक्वल टू -78.2 किलोजूल पर मोल। Next is relationship between heat of reaction at a constant volume and heat of reaction at constant pressure. So we started this topic from first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q minus W, where W is a work of expansion. So Q is equal to delta U plus P delta V. Now we also studied that QV is equal to delta U when volume is equal to constant and QP is equal to delta H when pressure is constant. So QP is equal to delta U plus P delta V and delta V की हुंदा, delta V हैगा change in volume means V2 minus V1, final volume minus initial volume. So put the value of delta V which is equal to V2 minus V1. So after solving, what is this QP? QP is equal to delta H. So delta H is equal to delta U plus PV2 minus P1. Now, this is important. For ideal gas, the equation is PV is equal to nRT, and if initial state PV1 is equal to N1 RT, and for final state PV2 is equal to N2 RT. Put these value into this equation, which is equation number first. Same here. सो हुण इहदे विच इक्वेशनस दे विच की आ PV दी जगह ते nRT जिहड़ा पुट करता। ठीक है, हुण इहदे विच तुसीं RT जिहड़ा कॉमन ले लो N2 minus N1. सो व्हाट इज दिस डेल्टा Ng? व्हाट इज डेल्टा Ng? डेल्टा Ng इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स minus number of moles of gaseous reactants. Means delta Ng रजे की हैगा difference between number of moles of gaseous products and those of gaseous reactants. So इसका मतलब delta H दी जगह ते QP पुट करता, delta U दी जगह ते QV पुट करता. So after solving जेड़ा final expression हैगा relationship हैगा between QP and QV वो A होगा. ठीक है, now हुण जे तुसी वो वाली कंडीशंस देखनियां ने under which QP is equal to QV. So हम तुसी इक्वेशन तो जड़ा आइडिया लगा लो, QP दी वैल्यू QV दे इक्वल कदों होगी जदों ये सारी टर्म की दे इक्वल होगी 0. हुण डेल्टा NGRT इनिशियल की सीगा P डेल्टा V है ना,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਮ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਵੈਨ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵੈਸਲ, ਅਗਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵੈਸਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ। या फिर when a reaction involves only solid or liquid or solution, because ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ negligible ਹੁੰਦਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਅਗਰ negligible ਹੁੰਦਾ then we assume it constant. And the third is important point, when the number of moles of gaseous reactants and products are equal। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸੀਅਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ N1, ਗੈਸੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ N2, ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ N ਮੀਨਸ N2 N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 0। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ QP ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, QV ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਫॉर एग्जांपल ਹਾਈਡਰੋਜਨ which is a gas plus chlorine which is also a gas, it forms 2HCl, this is also a gas, because ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਗੈਸੀਅਸ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਮੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਮੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਇਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2। Similarly, number of moles of products ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ M2 is equal to N1, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ QP ਹੈ that is equal to QV। ਸੋ that's it for the day। ਸੋ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ।